the first thing that you need to install is install enterprise edition of Eclipse. ठीक है, enterprise edition में आपको क्या मिलेगा? When you open it, three software you can download, three software, or there are so many software available for the testing purpose. So one that I use, SOAP UI. So first download this, and after that you need to download what? You need to download the just a second, Tomcat server. ठीक है, टॉमकैट सर्वर आपको डाउनलोड करना है, और ये इक्लिप्स आपको एंटरप्राइज करना है, एंड देन सोप यूआई. ठीक है, सो फर्स्ट वन बाय वन मैं तीनों का पर्पस बता देता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर हैविंग स्टैंडर्ड एडिशन, ओके जस्ट a second. Yes, Saksham. Okay, fine. Just a second. Now it is visible. Okay, so first of all, if you are having a standard edition, then in a standard edition, there is no chance to create any web services, or sorry, web service बोलो, there is no chance to create a dynamic website or something. तो वो सिर्फ क्या है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन या स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं. इफ यू वांट टू क्रिएट योर एंटरप्राइज एप्लीकेशंस एंड वेब सर्विसेज, सो यू नीड टू डाउनलोड द एंटरप्राइज इक्लिप्स मॉड्यूल. तो वो आपको एंटरप्राइज J2E होता है, डबल ई, जो वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. उसके बाद आपको करना क्या है, एक तो ये हो गया. नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, नेक्स्ट यू नीड टू डाउनलोड द Tomcat server. You can download Tomcat 9. From here you can download and install it in your PC. Done. After done this, install this. After installing, you need to create, click on the file, then create a project. So project में आपने project में क्या करना है, new, then there are enterprise, Maven project, dynamic web project आपको select करना है. But in case sometime we don't have these options over here, so you can go for other, click on other, and here you can find out web. So in web you can get what, you will get dynamic web project. So first you need to click on it, then next, here you write the name of project, sum of two numbers. Okay, and then you need to set the environment. So click on it, and whatever the environment or Tomcat Apache server you have installed in your PC, you need to select that version, and then click on the next. Here you need to do what, here you need to set the path. So click on the browser, browse, and go to the C drive, Apache Software Foundations Tomcat. So this can be done in desktop. आपको फोल्डर की लोकेट करना है यहाँ पे, जहाँ पे आपका क्या है, ये चीज इंस्टॉल्ड है. रेस्ट कैन प्लीज रिप्लाई, am I audible or not? अब्बास, रिफ्रेश करो एक बार. Okay, so here you need to set what, you need to set the Tomcat and then finish. After that, again click on finish. Now here we have sum of two number of folder over here. Go to this folder,
and just create a function over here or class, one class java resource library में जाके you can create first if you want to create any package, you can click over the package. uh, it is your choice that you want to create your own package, otherwise it will automatically create with this same name as a class, a package with the same name as a class. Okay, if I'm going to create a class, just let me show you. So here I'm name that class as a mine or my services. Okay, service. So when I click on it, so you will get to know the name of the class, oh sorry, the name of package will be automatically according to your folder or according to your project. And then here we have what we have, my service.java class, so in which we are just creating a function public स्ट्रिंग, बिकॉज आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी हम कंटेंट वेबसाइट पे अपलोड करवाते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ HTML एंड HTML कंटेन ओनली स्ट्रिंग डेटा। ठीक है, मतलब जो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही डेटा मोस्टली रहता है उसका, वो इंटीजर ये जो है ये हम जो कैलकुलेशन करते हैं वी कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न भी क्या करना है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है। लेट मी टेक ऐड फंक्शन नेम एज ऐड, so within add I'm returning what, I'm return string dot value of a plus b. So here you can take the two argument, sorry, int a, int b। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक ऑन इट, गो टू वेब सर्विसेज, क्रिएट वेब सर्विसेज। इस तरह से आपके पास एक पेज खुल जाएगा। नाउ यू आर हैविंग द नेम, देन यू आर हैविंग वेब सर्विसेज टाइप। तो दो टाइप की होती हैं, बॉटम अप और टॉप डाउन। ठीक है, सो बॉटम अप जावा बीन सर्विस और टॉप डाउन। तो ये एक तरह से वाइस वर्सा होता है कि हमने सॉप से जावा में क्रिएट करना है, जावा से सॉप में क्रिएट करना है। ठीक है, तो अभी हम सेम ही जाने देंगे क्योंकि हमें जावा से उसमें क्रिएट करना है, तो हमें बॉटम अप लेना है। उसके बाद पब्लिश कर देनी है, मॉनिटर भी करना है। ठीक है, तो ये दोनों टिक कर देने आपने। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जब आप करोगे तो देयर आर स्टाइल दैट वी यूज इन, बट बाय डिफॉल्ट हम क्या करते हैं उसको डॉक्यूमेंट टाइप में ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, ऐड इज अ फंक्शन विच वी यूज इन दिस क्लास, सो इट विल क्रिएट योर विजडल फाइल, WSDL फाइल जो मैं आपको बताता था। ठीक है, क्योंकि अब मैं सर्विस क्रिएट कर रहा हूं तो उसकी विजडल फाइल होगी एक, याद है मैंने बताया था कि एक विजडल फाइल होती है, वो UDDI में होती है स्टोर। अगर कोई अपनी जो क्या बोलते हैं, कोई वेब सर्विस लॉन्च करता है, इट विल बी स्टोर्ड ओवर द UDDI। सो आई एम जस्ट लेट यू नो कि वो UDDI कहाँ पे मिलता है। जब आप नेक्स्ट करते हो okay, so here you need to do what, you need to start your server। so Tomcat server जो हमने करा हुआ है हम उसको स्टार्ट करते हैं। अब ये तो इजीली स्टार्ट हो गया। सम टाइम क्या होता है, Tomcat सर्वर स्टार्ट नहीं होता। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, जस्ट आप जब आप कंसोल में जाते हो वहां पे एक सर्वर की टैब होगी, क्लिक डबल क्लिक ऑन दैट। ठीक है, फर्स्टली मेरे को इसको फिनिश करने दो, मैं बताता हूँ। इफ यू वांट टू चेंज द पोर्ट नंबर, डबल क्लिक ऑन दैट, यू विल गेट अ टैब ओवर हियर। फ्रॉम देयर यू कैन चेंज द पोर्ट नंबर आल्सो। सो लेट मी
Yes, so here you can launch the web services explore to web this web services to the unit test UDDI registry. ठीक है, तो मतलब आप कोई पर्सनल यूडीडीआई या मतलब जिसमें आपको क्रेडेंशियल मिले हुए हैं वहां पे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप लोकल में पब्लिश कर सकते हो। तो अभी हमारे पास कुछ है नहीं पर्सनल, तो मैं इसको डायरेक्टली जाने दूंगा, फिनिश कर दूंगा। क्लियर। सो इस तरह से मेरे पास क्या हो गया, मेरी वेब सर्विसेज जो है वो एक तरह से रेडी है। नाउ आई वांट टू चेक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू चेक द visual document. So if you go for the web content folder within your project, if you go for the web content folder, here you can check, then go for the my services dot wsdl wsdl. Okay, so here you can get all the information about your document. What are the functionality, what are the variables that we use, what are the function that we use. So ये सारा कुछ इसके अंदर आ गया। नाउ लेट मी टेस्ट दिस विजडल whether it is working or not. So how we can check that? So you can start with the SOAP UI. ठीक है, you can test it with the help of SOAP UI. So here what we have interface of SOAP UI. So I'm clicking over the file. So in case if you want to check the REST API, then you can also click check by this. Otherwise, you can also go for the SOAP project. So I'm going for the SOAP because I want to check my SOAP application. So here I'm write my SOAP application. So यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो फाइल है इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाना है, एंड देन यहां से आपको इसको कॉपी करना है, अप्लाई, ठीक है, सॉरी कॉपी कर लेना है, इसको कैंसिल कर देना है। नाउ गो फॉर दिस एंड हियर यू नीड टू पेस्ट दिस एंड ब्राउज एंड सेलेक्ट द विजुअल डॉक्यूमेंट, ओपन, ओके। तो ये सारा आपका विजुअल डॉक्यूमेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट अपलोड हो गया पूरा। नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग फॉर चेक। सो हियर यू कैन चेक, इनवेल्प आ रहा है, हेडर आ रहा है, बॉडी आ रही है, फंक्शन आ रहा है उसके अंदर। तो यही था एक सॉप एप्लीकेशन का फॉर्मेट। नाउ आई एम जस्ट चेकिंग दैट if I assign 5 here and 7 here, so this SOAP application will work fine or not. So I'm just checking this by clicking over here. So you guys can check, there is a 12 value returned by the this particular SOAP application or SOAP web services. क्लियर हुआ ये कंसेप्ट पूरा? It is clear to everyone? Is it clear to everyone? Acknowledge in the chat. I'm just giving you one more example, same example for this. So here I'm creating set or get or set method। ठीक है, मैंने क्या किया, I'm taking some variables और value। ठीक है, मैंने स्टूडेंट स्कूल आईडी, ठीक है, फिर गेट नेम ले लिया पहले। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं, सॉरी, now it is visible। Okay, so here you guys can check, I'm taking
वेरिएबल्स, ठीक है, प्राइवेट वेरिएबल ले लिए मैंने सो दैट डायरेक्टली यूज ना हो सके, ठीक है। अब मैंने क्या करा, सेट नेम ले लिया, दिस डॉट स्टूडेंट नेम, उसमें स्टूडेंट नेम आ जाएगा, स्टूडेंट स्कोर, स्टूडेंट सेट गेट, फिर स्टूडेंट आईडी सेट एंड गेट, ठीक है, एंड देन सबको रिटर्न करवाना, ठीक है। किस फॉर्म में, टू स्ट्रिंग में मैंने उसको रिटर्न करवा दिया, ठीक है। देन अब नेक्स्ट में मैंने क्या करा हुआ है, स्टूडेंट सर्विस बनाई, ठीक है। तो इन सब में मैंने क्या करा, ऐड स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हो, मैंने सब में यहाँ दोनों में बुलियन कराया, ठीक है। ये सारे फंक्शंस हैं, दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट, मैंने एक इंटरफेस बनाया, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन ले लिए और उनको अब मैं क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा, ठीक है। तो मैंने इम्प्लीमेंट करी क्लास, ठीक है। आई एम टेकिंग व्हाट, आई एम टेकिंग मैप, ठीक है। ये मतलब हैश मैप मैंने यूज करा, कलेक्शन यूज करी है। सो आई एम टेकिंग मैप इंटीजर एंड स्टूडेंट, तो मतलब स्टूडेंट क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और एक इंटीजर क्लास के वैल्यू लिया है, मतलब एक इंटीजर क्लास को यूज करा है, एक स्टूडेंट क्लास को यूज करा है, और उसका मैंने एक पर्सन नाम से ऑब्जेक्ट बना लिया। अब दोनों में से वैल्यू गेट करूंगा मैं, ठीक है। तो ऐड स्टूडेंट में इफ p डॉट इज इक्वल टू नल रिटर्न फॉल्स, इफ p डॉट गेट id तो मतलब रिटर्न ट्रू, तो मतलब अगर वैल्यू आती है तो ट्रू करेगा, नहीं आती है तो फॉल्स करेगा, ठीक है। सिमिलरली आईडी आती है तो ट्रू करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। स्टूडेंट गेट स्टूडेंट आईडी मिली है, ठीक है, तो ट्रू करेगा। ट्रावर्स ये क्या है, गेट ऑल स्टूडेंट, तो सबकी कीज साइज सब कुछ मिलेगा, तो उसको प्रिंट करवाएगा। रिटर्न पी करना का मतलब है कि वैल्यू प्रिंट करवाएगा, ठीक है। अब इसी सर्विस को सेम अगर आपको करना है तो यू गाइस कैन चेक कि जैसे मैंने यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर है, प्रॉपर्टीज ली, जस्ट कॉपी दिस, then go to your shop. Again I'm going to create one more project. You can name it my service, okay, and here you can paste and then select VSDL. So when I create this, so you guys get all the functions over here, ठीक है। सो अब मैं इसको ऐड को करता हूँ, ऐड को चलाता हूँ पहले। सो रिक्वेस्ट करी, सो हेयर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे नेम में डाल दिया योगेश, स्कोर में डाल दिया 50 एंड आई वांट टू चेक। तो क्या हुआ, एक में इनपुट मैंने नहीं दी तो एरर आ गया। अब मैं इसमें एक वैल्यू दे देता हूँ और इसको रन कर देता हूँ। सो ट्रू रिटर्न हो गया कि सब में वैल्यूज हैं। अगर मैं इसमें कुछ इस तरह से दे देता हूँ, अगेन आई एम गेटिंग एरर फॉर इनपुट स्ट्रिंग नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो मैंने उसके लिए जो VSDL में अगर आप चेक करोगे तो दैट इज फॉर इंटीजर टाइप, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इंटीजर टाइप आएगी, और आप जब इसको रन करोगे तो ट्रू रिटर्न कर देगा। मतलब ट्रू रिटर्न करने का मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट जो है वो ऐड हो चुका है इस डेटाबेस में, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस? मैं दूसरा फंक्शन है यहाँ पे, इसको रिक्वेस्ट करता हूँ, I just want to delete this, so I'm putting 1 and then the student will be deleted. Same if I use this, so click over here, ठीक है। अब वैल्यूज जो है मैंने डाली नहीं है, तो जस्ट असाइनिंग 1 एंड देन क्लिक, सो अगेन ट्रू आ रहा है, तो मतलब ये फेच करता रहेगा, ठीक है, डेटा को। तो ये देखो जो भी वैल्यू आपने डाली है वो आती जाएगी, क्लियर है? इज इट क्लियर?
ये 5 मैं निकालने लगा हूँ। इनको बता देना कि सर ने वेट बहुत करा था। जब आप क्लास में नहीं होते तो ये पता चलता है, इससे पता चल जाता है कि क्लास में हो नहीं हो आप। वरना सामने दिख जाता है कि हाँ पोल चल रहा है और 2 मिनट लगते हैं उसको क्लिक करने में। फ्रॉम हियर वी गेट टू नो कि कौन क्लास में एक्टिव और कौन नहीं है। 1 more paper. सबको क्लियर हुआ आज का कंसेप्ट। तो ये सोप तक का था कि सोप कैसे डिजाइन करते हैं। सिमिलरली मैंने आपको थ्योरेटिकली रेस्ट का भी करवा दिया था। आगे जैसे हम स्टार्ट करेंगे तो हम इनको यूज करना कि कैसे कैसे बना के हम आगे दूसरी एप्लीकेशन में कैसे यूज करेंगे। फिफ्थ जो आपका प्रैक्टिकल है वो थोड़ा लेंथी प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो उसमें मैं ये बताऊंगा, दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी हमें खुद से बना के, उस पर कैसे उसको इन्वॉल्व करना है, कैसे इसको अप्लाई करना है दिस सर्विसेज। सो वो चीज़ आपको बताऊंगा। क्लियर? सबको क्लियर हो गया? Is it clear to everyone? Now next जो है, share my screen once again. नेक्स्ट जो यूनिट रहेगा ठीक है, उसमें आपका ये फुल डिज़ाइनिंग वगैरह रहेगी कि कैसे हमने स्टोर करवाना है, ठीक है। कुछ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, और कुछ आपको रिस्पॉन्स वगैरह जो एक्सएमएल फाइल को कन्वर्ट करना जेसन में, जेसन से रिस्पॉन्स लेके आना एक्सएमएल में। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। और रेस्ट एपीआई का वो जो आगे हमने अभी तक सोप का चेक कर लिया कि सोप को बना के और चेक कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे करते हैं, वो देख लिया। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन वी विल यूज व्हाट, वी विल यूज द रेस्ट एपीआई। पहले क्रिएट करेंगे उसको, देन विल लुक इनटू कि हाउ वी कैन अप्लाई ओवर द अदर वेबसाइट। गॉट इट? और बाकी सारा कंटेंट जो है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ है, यू गाइस कैन चेक फ्रॉम द यूनिट 1। होप यू ऑल हैव डन द क्विज आल्सो, क्विज 1 and 2। जस्ट अ सेकेंड। ये जो प्रैक्टिकल का स्क्रीनशॉट है, ठीक है, अपलोडिंग ओवर द वीबी, इसकी पीपीटी बना रखी है, आप उसको भी एक बार चेक कर लेना। चेक ओके गाइस, आज के लिए इतना ही है। ऑल द बेस्ट फॉर योर MST 1 एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी about the MST or anything, you can ask.